Hello everyone. Let's start with the question number one. Question one says we are given two vectors A and B, and we have to find magnitude of summation of A and B. So A plus B vector, it will be 2i cap minus 3j cap plus 5i cap minus 6j cap, and it will be 7i cap minus 9j cap. And magnitude of this vector, the sum of A and B, will be root over the magnitude of a vector is defined as root over x square plus y square plus z square, where r is xi cap plus y j cap plus z k cap. So magnitude of this vector will be 7 square plus 9 square, that will be 49 plus 81, and it is root 130. So basically the answer will be B, root 130. Let's move to the question number two. The question number two, we are given a triangle with three vectors A, B, and C, and some relations between A and B are given, and we have to find a right relation. In triangle law of vector addition, we know the sum of two vectors which are in the same sense will be equals to the third vector which is in opposite sense of previous two. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज सेंस की, तो यहाँ पर C वेक्टर इसी सेंस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंड A वेक्टर भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, A एंड C, एंड जो B वेक्टर है यहाँ पर वो बेसिकली एरो नीचे, तो उसका जो सेंस है वो क्लॉकवाइज है, तो B वेक्टर यहाँ पर इस सेंस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो जो नेट हम बोल सकते हैं C प्लस A विल बी B, जो एक रोटेशन वाला सेंस है इक्वल्स टू डिफरेंट रोटेशन सेंस वेक्टर्स, तो C प्लस A इक्वल्स टू B. करेक्ट आंसर विल बी C. We can solve this problem in method 2. We are given this triangle, and we can reverse the direction of vector C. So on reversing the direction of vector C, it will become minus C, and this is vector B, and this is vector A. So we can reverse the direction of vector and put a minus sign to the vector, that will be negative of the previous one. This can be done for B also. If we reverse the direction of B, then it will be minus B, it is A, and it is C. In this triangle, we see the direct sense of all three vectors is anti-clockwise, so sum of all these three vectors will be 0. So C plus A equals to B. Now see the problem number 3. A body goes 30 kilometers south. So basically हमें एक direction sense चाहिएगा यहाँ पर, north, south, east and west. The body goes 30 kilometers south, 30 kilometer south, and then 40 kilometer east, and then it turns to east and moves 40 kilometer east. What will be the displacement from initial point? So basically the displacement vector is this vector is displacement vector, and it is a right angle triangle, so magnitude of this displacement vector will be length of hypotenuse of right angle triangle, that is 30 square plus 40 square equals to 50, and its direction we can see its direction is southeast, and we can
find angle also. So this angle, let's say it is theta. So tan theta in this triangle will be 40 by 30, 4 by 3, and theta will be 53. And if theta is 53, then this angle alpha will be 37. So we can say the displacement vector is 15 magnitude, 50 kilometer, and 37 degree south of east. South of east. So answer is A. Correct answer is A. Let's see the next problem. Question number 4. If A and B are two non-zero vectors such that A plus B equals to minus A minus B by 2, and magnitude of A and B related as this. So let's start with the given equation. Magnitude of sum of these two vector equals to magnitude of difference of two vectors divided by 2. Magnitude of resultant of two vector is a square root over a square plus b square plus 2ab cos theta, and whereas the difference of two vectors is root over a square plus b square minus 2ab cos theta, and divide by 2. We can square, so it will be a square plus b square plus 2ab cos theta equals to a square plus b square minus 2ab cos theta by 4. And we are given a equals to b, 2b. Magnitude of a vector a equals to 2 times of magnitude of vector b. So we can put a equals to 2b. So it will be 4b square plus b square plus 4b square cos theta equals to 4b square plus b square minus 2 into 2b. Sorry, it will be 4 b square cos theta divided by 4. The b square will be cancel out by taking common, and we can solve this further. This will become 5 plus 4 cos theta equals to 5 minus 4 cos theta by 4. We can cross multiply here. 20 plus 16 cos theta equals to 5 minus 4 cos theta. So 20 cos theta equals to minus 15. Cos theta equals to minus 15 by 20, that is minus 3 by 4. So theta is cos inverse of minus 3 by 4. So our answer is cos inverse of minus 3 by 4. Option C. Let's see the problem number 5. A vector of magnitude 20 is added to a vector of magnitude 25. The magnitude of this sum might be. दो वेक्टर हमें गिवन है और इनका जो मैग्नीट्यूड है, एक का 20 है एंड दूसरे का 25 है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दिस वेक्टर. तो बेसिकली जो मैक्सिमम आर की वैल्यू रहेगी, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, वो हमें पता है दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगी. तो ये आ जाएगी 25 प्लस 20, दैट इज 45. एंड जो मिनिमम वैल्यू है दोनों के सम के रिजल्टेंट की, जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है a माइनस बी मॉड. तो हम लिख सकते हैं इसे 25 माइनस 20 मॉड, दैट इज 5. तो बेसिकली r आपका लाई करना चाहिए 5 से 45. ये वैल्यू होती है जब थीटा आपका 0 होता है दोनों वेक्टर के बीच में, और ये जब थीटा आपका पाई होता है. तो हमारा आई हमेशा लाई करेगा 5 से 45. एंड इस रेंज में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है 12. 0, 3 एंड 47 इस रेंज में नहीं है. 47 45 से बड़ा है, 3 5 से छोटा है, 0 भी छोटा है. तो अपना आंसर यहाँ पर होगा 12, दैट इज सी आंसर. Let's see the question number 6.
Question number 6 says figure shows two vectors A and B whose magnitudes are 4 and 2 units. So ये यहाँ 4 unit magnitude है A का and B का 2. Which of the following combination has maximum magnitude? हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर अगर बात करें A प्लस बी की, तो अगर आप A को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 4i कैप, ये मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ यहाँ पर, एंड B को हम लिख सकते हैं -2i कैप. ये बेसिकली, तो ए ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन में हमें बोल रखा है ए प्लस बी. तो ए प्लस बी अगर आप करते हो तो ये आएगा 4i कैप -2i कैप, दैट इज 2i कैप, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 2. सिमिलरली बी ऑप्शन में अगर देखें तो सी हमें गिवन है ए माइनस बी, 4i कैप -2i कैप, दैट इज 6i कैप, मैग्नीट्यूड 6. सी ऑप्शन में हमें गिवन है जो सी है 2b, this means -4i cap and -4i cap, or it will be -8i cap and magnitude इसका होगा 8. एंड डी की अगर मैं बात करूं तो हमें वेक्टर गिवन है 2a दैट इज 8i cap minus -2i cap, so it is 10i cap, so magnitude is 10, so maximum magnitude is 10, that is D. In question number 6, our answer is D. Question number 7 says the maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors are 17 units and 7 units respectively. Then magnitudes of resultant of the vectors when they act perpendicular to each other. So basically we are given maximum and minimum magnitudes. As we see in last to last question, the maximum value of resultant of two vectors is a plus b. So we are given a plus b equals to 17. And similarly, minimum value is a minus b, that is given 7. We can solve these two equations by adding these two equations. We will get 2a equals to 17 plus 7, b will be cancelled out. It is 24 and a will be 12. So the value of a is 12, and we can put here a equals to 12. Then we will get b equals to 5. So A and B has magnitudes 12 and 5. Now we are required to calculate the magnitude of resultant of vectors when they act perpendicular to each other. So when A and B are perpendicular, then the resultant will be root over a square plus b square. Resultant is 5 square plus 12 square, and it is 13. So our answer in this question will be D, 13. Let us see the next problem, question number 8. The person pushes a box kept on a horizontal surface with force of 100 Newton. ये force का magnitude हमें given है. In unit vector notation, force F can be expressed. So basically हमें ये force F given है जिसका मैग्नीट्यूड है 100. हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल हम बना सकते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में. राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और हमें ये एंगल 45 गिवन है. अगर आपके पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस 100 है और ये एंगल 45 है, आई थिंक हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो बेस आएगा इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 100 cos 45, जो कि आएगा 50√2, cos 45 1/√2. एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर आपका 100 sin 45, जो कि आपका आ जाएगा 100/√2. इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50√2. So basically we have two vectors. This one is 50√2 in magnitude, and this is also 50√2 in magnitude. This component is in x direction, so 50√2 in x direction and 50√2, this 50√2 vertical one, it is in negative y direction because upper direction is positive y, so downward will be minus y. So minus 50√2 j cap. This is the unit vector representation of F. So our answer will be C,
50√2 कॉमन ले सकते हैं हम, आई कैप माइनस जे कैप। सो बेसिकली हमें कंपोनेंट्स लेने होते हैं, और आई थिंक आप लोगों को याद रखना चाहिए, अगर एक फोर्स आपको, जो भी एक वेक्टर आपको ऐसे गिवन है और आपको अगर इस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट चाहिए, तो इधर कंपोनेंट हमेशा आएगा एफ कॉस थीटा, इधर एंगल है, और जो परपेंडिकुलर है वो आएगा आपका एफ साइन थीटा। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, और ये हमेशा इस तरीके से होंगे कि जो आपका रेक्टेंगल बनेगा उसमें एफ आपका डायगोनल होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 9। The two forces P and Q are in ratio P ratio Q equals to 1:2. If the resultant is at an angle tan inverse root 3 by 2 to vector P, then angle between P and Q. So we have to find angle between P and Q. So let's start. As we know, the angle between resultant and one vector is given by tan alpha equals to B sin theta upon A plus B cos theta. If A and B are two vectors, then resultant will be this at an angle alpha to A, and the angle between vectors is theta. So here angle between vectors is theta. We are given tan angle is tan inverse root 3 by 2. So we are given the angle alpha equals to tan inverse of root 3 by 2, and we can write it as tan alpha equals to root 3 by 2. We are given in the equation tan alpha equals to root 3 by 2. So root 3 by 2 equals to, and this angle, the resultant has this angle with the vector P, so P vector will be A, so we can substitute P with A and Q with B. So Q sin theta upon P plus Q cos theta. We can square both the terms. Before squaring, we can put the values of P by Q we are given. So divide by Q in both the section numerator and denominator. P by Q plus cos theta, we can write it as this, and P by Q we are given 1 by 2. So sin theta upon 1 by 2 plus cos theta, it is 2 sin theta upon 1 plus 2 cos theta. So now we have an equation, we can square it. We can square this equation. So by squaring this equation, we will get 3 by 4 equals to 4 sine square theta upon 1 plus 2 cos theta whole square. Now we can cross multiply this. 3 into 1 plus 4 cos square theta plus 4 cos theta equals to 16 sine square theta. And we will get 3 plus 12 cos square theta plus 12 cos theta, and sine square theta we can put it as 1 minus cos square theta. Sine square theta can be written as 1 minus cos square theta. So it will be 16 minus 16 cos square theta. We can rearrange the terms. 16 plus 12, it will be 28 cos square theta, 16 plus 12, and plus 12 cos theta, and minus 13 equals to 0. So basically this will be the equation. So we can solve this quadratic equation. So the cos theta will be minus b minus 12 plus minus root over b square, 12 square minus 4ac, so plus 4 into 28 into 13
upon 2a 2 into 28. So we will get two answers. The one will be cos theta will be half. We will get half by solving this. So theta will be 60 degree. The other value will be negative. So the angle will be greater than 90. We are not given in the question. One of the value will be negative of something. I think it will be 52 upon 2 into 28. So this will give the value for this. We will get theta 1. I can say theta 1 greater than 90. So we will accept this value only. We are given in this question. In options, we have only one value, that is 60. So answer will be D. Now let us see the next problem. The next problem says the x and y components of a displacement vector are, the x component is -3 and y component 4. So we can write it as -3 I cap plus 4 j cap, the x and y component of displacement. What angle does the vector make with the positive x-axis? So we can draw this vector. This is x-axis, this is y-axis. So one of the component is along the minus x-axis 3. मैं यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन मैंने एरो से बता दिया, माइनस आई कैप 3 माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप, एंड 4 कंपोनेंट आपका है जे कैप. इनका जो रिजल्टेंट होगा डेफिनेटली इधर होगा, और ये जो रिजल्टेंट है इसका जो एंगल है, ये अल्फा की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3. तो यहाँ से अल्फा आपका आ जाएगा 53. लेकिन हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पूछा है, तो आर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो आएगा वो ये एंगल आएगा, और ये जो एंगल है थीटा वो आपका होगा 180 माइनस अल्फा 180 माइनस 53, इट विल बी 127 डिग्री. So answer will be 127 degree. In question 10, the answer will be 127 degree. Now let us see the next problem. Question 11. On the basis of below diagram, mark correct option. यहाँ पर दो वेक्टर हमें गिवन है, इन दोनों के बीच में एंगल हमें थीटा प्लस अल्फा है, हाँ, और रिजल्टेंट है आर. ये हमें गिवन है आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो बेसिकली आई थिंक हम ये रिकॉल कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर आपके पास में, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, स्मॉल दे रखा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें गिवन है. अगर इनका रिजल्टेंट अगर ए इक्वल्स टू बी होगा, तो ये जो एक्सप्रेशन है tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इस एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो बाई सेक्टर पर होगा. दिस मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा. हमें क्वेश्चन में थीटा गिवन है, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा. सॉरी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो ये दोनों वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड रहेगा. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. हमें ये भी आई थिंक पता होगा कि अगर दो वेक्टर आपके, अगर बी वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका, तो जो रिजल्टेंट है वो आपका बी वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड रहेगा. तो रिजल्टेंट होगा वो बी वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड होगा. ये जो एंगल है थीटा वो कम होगा एज कंपेयर टू अल्फा. थीटा लेस देन अल्फा होगा जब बी का मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा होगा ए के कंपेरेटिवली.
तो थीटा लेस देन अल्फा होगा जब बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ए से। आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हो कि भाई ये पैरेललोग्राम आपका बन रहा है, तो दोनों अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर देता हूँ, मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। तो पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो वहां से भी हमें समझ में आ जाएगा कि तो ये साइड अगर चारों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये साइड बड़ी है तो जो पैरेललोग्राम बनेगा हमारा यहाँ पर वो कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें ये कंक्लूड करना कोई बड़ी बात नहीं है कि थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, ये रिजल्टेंट होगा। एंड सिमिलरली अगर आपका ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और बी का मैग्नीट्यूड स्मॉल है कंपैरेटिवली, तो उस केस में जो पैरेललोग्राम बनेगा आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, एंड जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस बार ए की तरफ ये इंक्लाइंड रहेगा, तो अल्फा एंगल स्मॉल होगा और थीटा एंगल बड़ा होगा इस केस में। कब? जब आपका ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बी से। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड रहता है, और अगर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी तरफ वो इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अपना आंसर डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज एन यूनिट वेक्टर, दिस मीन्स अगर एक वेक्टर है ए जो यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी हमें 1 गिवन है। आई थिंक ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इस केस में जो एंगल आता है दोनों वेक्टर के बीच में वो 120 डिग्री आता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट हमें याद रहना चाहिए। 2ab cos थीटा अगर आप लिखते हो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू रूट ओवर 1 + 1 + 2 cos थीटा, यहाँ से cos थीटा हमारा आएगा -½ एंड थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। दिस मीन्स ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एंगल आपका 120 डिग्री है। हमें बोला है कि इनका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए आई थिंक हमें पता है डिफरेंस जो होगा वो a माइनस बी होगा। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, डिफरेंस के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, सम वाला ही रूल है। बस आपको क्या करना है, इस बार a को ऐड करना है माइनस बी वेक्टर के साथ। तो अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर, तो a वेक्टर को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, एंड जो बी वेक्टर है उसको माइनस कर देना, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इधर। ये वेक्टर आपका माइनस बी वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हुई है, अपोजिट कर दिए। एंड ये जो एंगल है ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। टोटल एंगल 180 है, 180 - 120 60। सो जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है तो हम ये यहाँ से देख सकते हैं ए और माइनस बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल 60 डिग्री है। तो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा √1 + 1 + a² + b² + 2 ab cos 60, एंड cos 60 हाफ रहता है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी √3। तो क्वेश्चन 12 में हम आंसर कर सकते हैं √3, दैट इज बी। Let's see the question 13. 5 equal forces of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If the angles between them are equal, the resultant force will be. तो बेसिकली हमें 5 फोर्स गिवन है और वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल रहेगा इनके बीच में थीटा, वो बेसिकली किसी एक पॉइंट पर टोटल एंगल की मैं बात करूँ तो 360 होता है। तो यहाँ 360 को हमने 5 में डिवाइड कर दिए, तो ये 72 डिग्री रहेगा, और सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। आई थिंक ये रिजल्ट हमें याद ही होगा, इसका जो आंसर है वो 0 आने वाला है। लेकिन इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि 0 कैसे आएगा, कि अगर आप इन सभी साइड से एक रेगुलर पॉलीगन बनाना चाहो, तो जैसे सपोज मैंने ये वेक्टर एज इट इज रखा है यहाँ पर,
और यहाँ से ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, रेड वाला वेक्टर मेरा ये था। अब मैं दूसरा जो वेक्टर है मेरा, ये वेक्टर है, इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देन तीसरा वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे ऐड कर सकते हैं। एंड चौथा वेक्टर हम इस टाइप से ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और पांचवा वेक्टर ऐसे। सिमेट्री नहीं बन पा रही है तो मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये बेसिकली पांच वेक्टर हम ऐसे एक पेंटागन बना सकते हैं। सभी की साइड इक्वल रहेगी, और ये जो एंगल है बेसिकली, ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो सम आएगा यहाँ पर वो 0 आएगा, क्योंकि सभी एक ही सेंस में आने वाले हैं। और आप कंपोनेंट से भी देख सकते हो, काफी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अपना 0। तो यहाँ पर अपना आंसर 0 आ रहा है। एंगल सभी वेक्टर के बीच में थीटा रहेगा। इस और हमें पता है, अगर हम पेंटागन की बात कर रहे हैं, एक रेगुलर पेंटागन आपके पास में, तो थीटा आपका 72 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। A particle has displacement of 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो डायरेक्शन सेंस ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर ईस्ट, 12 मीटर ईस्ट, देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ से स्क्रीन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अपना वेक्टर आएगा 6, डॉटेड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन सेंस, ये ऑर्डिनरी डायरेक्शन सेंस नहीं लेके एक्स वाई कोऑर्डिनेट और जेड अगर ले लें, तो हम लिख सकते हैं कि जो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका होगा 12 आई कैप। जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, वो होगा 5 जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में। एंड जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 6 के कैप, क्योंकि बाहर की तरफ है। तो ईस्ट, नॉर्थ एक्स और वाई से, एंड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जेड से। तो टोटल जो सम रहेगा वो इन तीनों का वेक्टर सम रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। और मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का हमारा आ जाएगा रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इट इज रूट 144 प्लस 25 प्लस 36। एंड यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 169 प्लस 36, एंड फर्दर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं रूट 205। रूट 205 बेसिकली ये अप्रॉक्सीमेटली 14.3 के इक्वल होगा। अपना आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन 14, आई थिंक 14 ही है ये, इसमें अपना आंसर आएगा सी 14.3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15। The sum of two forces acting at a point is 16 Newton. If the resultant force is at 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then forces are। तो यहाँ पर हमें दो फोर्स का जो सम है, वेक्टर सम है, ए और बी का वेक्टर सम है। द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट पॉइंट इज 16 न्यूटन। बेसिकली ए प्लस बी हमें 16 गिवन है, और जो नेक्स्ट लाइन है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, मतलब इनका जो वेक्टर सम रिजल्टेंट है वो 8 है, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स। तो बेसिकली ए और बी में कोई एक मिनिमम होगा। तो ए ये है सपोज,
एंड बी ये है, ए और बी में कुछ एंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा इनका ट्रायंगल लॉ से मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ, ये इनका रिजल्टेंट आएगा, और ये यहाँ से 90 डिग्री एंगल पर, राइट। यहाँ से हमें एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन से डील करते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये अपना 8 आएगा। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सिस्टम में अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन से जाएं तो ये काफ़ी लेंदी पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एंगल चाहिएगा ए और बी के बीच में। लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन यूज में ले लेता हूँ सेकेंड, और एक मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल से लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, तो मैं ये थर्ड इक्वेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लग रही है, हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन जो यूज में लेंगे वो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थर्ड इक्वेशन, एंड यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ सेकेंड इक्वेशन से बी की, जो कि आ जाएगी 16 माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एंड रिजल्टेंट हमें गिवन है 8, इसका मैग्नीट्यूड, तो हम इसे लिख सकते हैं आर का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 हमें गिवन है, तो इसे लिख देते हैं 16 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 32a इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एंड आर को मैं लिख रहा हूँ 8, 64, तो ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 32a आपका आ जाएगा 16 स्क्वायर 256 माइनस 64, ये आपका आ जाएगा 256 माइनस 64 बाय 32। तो कैलकुलेशन चेक करना है, देखना है अननेसेसरी हम कोई कैलकुलेशन ना करें। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए की 6, ए की वैल्यू 6 आ रही है, तो बी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से 10 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो बी 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 6 एंड 10। तो ये इक्वेशन हमने नहीं ली, ध्यान रखना है। थीटा यहाँ एक अननेसेसरी वेरिएबल आ रहा था, तो हमने अल्टरनेट वे देखा और यहाँ से क्वेश्चन किया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ p इक्वल्स टू q, दोनों वेक्टर इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमें नॉट करेक्ट पूछा है। तो p सेम मैग्नीट्यूड के और सेम डायरेक्शन में होंगे तभी p और q इक्वल होंगे। तो आई थिंक डायरेक्शन सेम है, तो यूनिट वेक्टर भी इनका सेम होगा। तो पहला करेक्ट है कि p कैप इक्वल्स टू q कैप, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होगी इनकी, और दोनों इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो p वेक्टर का और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, एंड इनके यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है कैप। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, p टाइम्स ऑफ q कैप एंड q टाइम्स ऑफ p कैप, बेसिकली p और q इक्वल है, p और q दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ p q कैप इक्वल्स टू q p कैप भी होगा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें गिवन है p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू p कैप प्लस q कैप, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये वेक्टर आएगा 2p वेक्टर, अगर p q वेक्टर को मैं p वेक्टर लिख देता हूँ जो कि हमें गिवन है, और ये आएगा आपका 2p कैप। सो p वेक्टर इक्वल्स टू p कैप ये बोल रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि जो p कैप होता है वो होता है p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, या p वेक्टर बाई p। सो बेसिकली ये डी ऑप्शन आपका रोंग होगा, और जो कि नॉट करेक्ट हमें पूछा है, तो हमारा आंसर डी होगा। Next question, question 17. For the three vectors, the magnitude of D equals to A minus B minus C and its direction are. तो यहाँ पर हम ऐसा ले सकते हैं कि ये x डायरेक्शन है, ये आपकी y डायरेक्शन है,
तो ए वेक्टर को आप लिख सकते हो आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 आई कैप, दैट इज आई कैप। बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं 4 जे कैप वाई डायरेक्शन में, एंड सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं 2 माइनस आई कैप, सो इसे हम लिखेंगे -2 आई कैप। तो जब हम डी कैलकुलेट करेंगे जो कि है ए माइनस बी माइनस सी, वैल्यूज मैंने पुट कर दिए इसमें, so it will be 3 I cap plus -4 j cap d vector. So 3 I cap, this means this is x, this is y, so 3 I cap this, and -4 j cap this, minus is related to that direction. So resultant will be in this direction d, and the angle with the x-axis tan theta is 4/3, theta equals to 53. So 53 degree below the x-axis, and magnitude will be magnitude of d will be 3 square plus 4 square, that is 5. So 5 and 53 degree below the positive x-axis. So our answer is C. In question 17, the answer is C. One more easy question, आगे बढ़ते हैं। Question 18. The resultant of three vectors OA, OB, OC shown in the figure is. So यहाँ पर हमें डायरेक्शन सेंस ऐसे ले सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। उस केस में मैं सी वेक्टर को लिख सकता हूँ आर आई कैप एंड सी, या ओ सी वेक्टर सॉरी, एंड ओ ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर जे कैप, मैग्नीट्यूड आर और डायरेक्शन जे कैप। एंड बी वेक्टर को अगर मुझे देखना, ओ बी वेक्टर को सॉरी, तो ओ बी वेक्टर अपना ये रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो आर है लेकिन एक्स और वाई एक्सिस से इसका एंगल है, यहाँ एंगल 45 हमें गिवन है, तो बी का ये कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस 45, जो कि आएगा आर बाई √2, एंड सिमिलरली ये कंपोनेंट बी साइन 45, जो कि बी आर बाई √2। सो बी को हम लिख सकते हैं आर बाई √2 आई कैप plus r by √2 j cap. The one component is along the x direction and other one is along y direction. तो इनके रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इन तीनों का सम आएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। हाँ, ये ओ बी वेक्टर है, तो ये अपना आ जाएगा आर आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस आर बाई √2 आई कैप प्लस आर बाई √2 जे कैप। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस आर बाई √2 आई कैप प्लस आर बाई √2 जे कैप, ये रिजल्टेंट है। इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा √x² आर प्लस आर बाई √2 स्क्वायर प्लस आर बाई √2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट विल बी आर प्लस आर बाई √2 into √2. So r will be, capital R resultant will be √2r plus r, or we can say √2 plus 1r. So our answer is C. In question 18, the answer is C, correct answer. Question 19, the values of cos minus theta minus cos 1. सो cos -60 की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। आप ये भी देख सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल नेगेटिव -60, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो आप इसे cos 60 लिख सकते हो। cos minus theta equals to cos theta, and cos 60 is 1/2. एंड cos 120 की अगर मैं बात करूं तो cos 120 आपका लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव आएगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे cos 90 इंटू 2 माइनस 60, 180 माइनस 60, एंड यहाँ पर 90 का आपका इवन मल्टीपल है तो cos का cos ही रहेगा 60, और
ये टोटल एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो minus half. So cos 120 is minus half. So our value in this question cos minus 60 minus cos 120 will be half minus minus half. It is 1. So correct answer is 1. A. Now let us move to the next problem, question 20. Forces proportional to AB, BC, 2CA acts along the sides of a triangle ABC in order. So एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, A, B, C and all sides are in order. तो A to B, AB vector, BC vector and CA vector. हमारे पास जो फोर्सेस है वो है AB, तो ये AB के अलोंग है AB. दूसरा हमारा BC, तो BC एंड तीसरा जो फोर्स है वो 2CA है. तो 2CA है तो ये बेसिकली CA ये होगा और 2CA इसका डबल होगा, मतलब CA की डायरेक्शन में डबल वेक्टर, ये 2CA होगा. तो यहाँ पर ये तीनों वेक्टर फोर्स मैंने ड्रॉ किए. इनको ऐसे हम लिख सकते हैं कि AB एज इट इज है, AB वेक्टर, BC वेक्टर आपका ये रहा, और मैं 2CA वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ये CA वेक्टर और सेम इतना ही आगे CA वेक्टर. और इन तीनों वेक्टर की अगर मैं बात करूं, जो हमारे ये तीनों वेक्टर है, ये ट्राइंगल वाले तीनों वेक्टर है, इनका सम जीरो होगा. वो हमें ट्राइंगल लॉ से पता है कि AB प्लस BC प्लस CA अगर सेम सेंस में है ये, तो इनका सम जीरो होता है. तो इन तीनों का जीरो हो जाएगा तो बचेगा केवल CA वेक्टर. तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट फोर्स का वो आएगा CA. तो अपना आंसर होगा A. C से A की डायरेक्शन में और आंसर A. In question 20, our answer is A. Now, let us see the numerical type questions. The first question says, ABC is isosceles triangle, right angle at A. Forces of magnitude 2 root 2 Newton, 5 Newton and 6 Newton act along BC, CA and AB respectively. It has same concept as the previous one. यहाँ पर एक ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. राइट एंगल ट्राइंगल है, ए पर राइट एंगल है एंड यहाँ पर ए पर राइट एंगल है ये. एंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 6, 9 एंड 2 रूट 2 अप्रोक्सीमेटली 2.8 आएगा. तो सबसे बड़ी साइड आपकी 6 होगी जो हाइपोटेनस होगा, और 1 आपकी 2 रूट 2 आएगी. तो ये मैं ले लेता हूँ एक वेक्टर आपका ABC. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, तो ये एंगल 45 होगा. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 45 होता है. अब हमारे वेक्टर की बात करते हैं. ये जो तीनों वेक्टर है ये लाई कर रहे हैं BC, CA और AB. तो BC के अलोंग आपको 2 रूट 2, सो BC के अलोंग आपको 2 रूट 2 एंड CA के अलोंग CA 5 एंड AB के अलोंग आपको 6. तो हमारे जो फोर्स थे वो इन साइड्स के अलोंग थे, तो मैंने इन साइड्स के अलोंग इन फोर्स को ड्रॉ कर दिया. अब इन फोर्स को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं हम कि 6 जो 6 वाला वो वर्टिकली अपवर्ड है, 5 वाला इधर है एंड 2 रूट 2 आपका यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, और ये एंगल 45 है. तो आप 2 रूट 2 वेक्टर इधर ड्रॉ कर सकते हो और ये एंगल आपका 45 होगा. तो यहाँ पर हम कंपोनेंट कर सकते हैं 2 रूट 2 वेक्टर के. 2 रूट 2 के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स में और एक नेगेटिव वाई में. तो ये आएगा 2 रूट 2 कॉस 45 जो कि बन जाएगा 2, और यहाँ पर 2 रूट 2 साइन 45 जो कि बन जाएगा 2. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो नेट फोर्स है 5 इधर 6 इधर
और 2√2 के दो कंपोनेंट होंगे 2 एंड 2। यहाँ से हम ये देख सकते हैं दोनों अपोजिट वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट 3 आएगा x में और y में हमारा 4 आएगा, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर जो 90 डिग्री पर है, तो 16 + 9 ये अपना आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर इस 21st क्वेश्चन में अपना आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The minimum and maximum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitude p and q are in the ratio 3:1. Find p by q. Minimum and maximum, अभी हमने देखा था कि maximum जो रहता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट वो a + b होता है, तो यहाँ पर p + q कर देता हूँ। एंड मिनिमम हमारा होता है p - q। एंड जो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है वो हमें गिवन है 3:1। सो p + q अपॉन p - q हमें गिवन है 3। इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p + q = 3p - 3q, और इसे हम लिख सकते हैं 6q = 2p। एंड यहाँ से p/q आपका आ जाएगा 6/2, जो कि होगा 3। सो मैक्सिमम और मिनिमम, आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ किया है। 1 सेकेंड, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की हमने। यहाँ पर 3q + q 4q एंड 3p - p 2p and p/q will be 4/2 2। So our answer is 2 in question 22. Next, question 23. Question 23. If the angle between the unit vectors a and b, a cap and b cap, is 60 degree, then a minus b. So a cap and b cap, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। हमें ए कैप माइनस बी कैप कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए कैप को एज इट इज रखा हूँ, बी कैप को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली ए कैप प्लस ऑफ माइनस बी कैप है। तो माइनस बी कैप वेक्टर बेसिकली सेम मैग्नीट्यूड होगा और बी के अपोजिट हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस बी कैप एंड दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। So angle between a and minus b cap is 120. So resultant of these two will be root over a cap square magnitude square. So 1 plus 1 plus 2 into 1 into 1 cos 120. Cos 120 is minus half. So 2 plus 2 minus 1 1. So question 23, the answer will be 1. अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि अगर आप फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ए वेक्टर है आपके पास में, बी वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो आपका आता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, वो आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बेसिकली यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाता है क्योंकि एंगल आपका 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो इसमें भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर आप फॉर्मूला यूज में ले रहे हो। अदरवाइज आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो यहाँ से भी अपना आंसर आ जाएगा 1 + 1 - 2 × 1 × 1 cos 60 एंड यहाँ से आंसर 1। Let us see the second last problem of this paper. If the resultant of two forces of magnitudes P and Q acting at a point at an angle 60 degree is √7q, then find P/Q. तो हमें दो फोर्सेस गिवन है P एंड Q और एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। एंड ये रिजल्टेंट हमें √7q गिवन है।
सॉरी रूट 7q, ये होगा रूट ओवर यहाँ पर p और q है, तो मैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 हमारा आपका आएगा हाफ। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 7q स्क्वायर हमारा आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq। q स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ तो 7 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर प्लस 1 प्लस p बाई q। मैंने q स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो p बाई q होल स्क्वायर प्लस p बाई q माइनस 6 इक्वल्स टू 0। p बाई q को हम एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट से x है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी वो कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फैक्टर कर सकते हैं हम इसके एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -3 एंड 2। x हमारा p बाई क्यू है, इसकी वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड्स है। तो हम -3 वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 2। हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। Last question says how many minimum number of coplanar vectors having different magnitudes can be added to give zero resultant। तो बेसिकली डिफरेंट वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंट है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये टर्म यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज एक वेक्टर है तो वो तो जीरो होना चाहिए, लेकिन हमें नॉन जीरो वेक्टर की बात करनी है तो एक वेक्टर का तो सम जीरो नहीं होगा। आप दूसरा वेक्टर अगर लेते हो तो सपोज इसे जीरो करना है तो मुझे इसके एंटी पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर चाहिएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से डिफरेंट है, तो ये डेफिनेटली जीरो नहीं होगा। इन दो का सम जीरो नहीं होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। लेट्स से अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा a माइनस बी। एंड अगर मुझे कैंसिल करना है इसे तो मुझे एक और वेक्टर चाहिएगा जो कि इनके सम को कैंसिल करे, जो कि इसके अपोजिट हो। तो मुझे मिनिमम 3 वेक्टर तो चाहिएंगे। अगर आपको इनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर है और उनका सम आपको जीरो चाहिए तो डेफिनेटली मिनिमम हमें 3 वेक्टर चाहिएंगे, क्योंकि दो वेक्टर का सम जीरो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट है। तो इसलिए मिनिमम आपको 3 वेक्टर चाहिएंगे ताकि तीसरा वेक्टर पहले दो के रिजल्टेंट को कैंसिल कर दे। तो कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है, जैसे ए इधर है बी इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके अपोजिट आपका सी वेक्टर आ जाए तो इन तीनों का मिलके जीरो हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं आप इनके कंपोनेंट कर सकते हैं। थैंक यू।